Hello students, today we are going to read our poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. This poem was originally written by the poet in Spanish, but later it was translated into English. In this poem, the poet emphasizes on the necessity of introspection through which man can achieve unity and develop a feeling of brotherhood amongst all mankind. The poet advocates the importance of silence and introspection. He asks us to keep still and quiet and look within and think about what they are doing. The idea of the poem is that the world needs a short respite, a short interval of peace as we see in nature. Winter season comes and the whole earth goes to sleep for a couple of months. But such inaction does not mean death. It is the time to gather strength for a new life, better than before. The poet appeals to us to close war industries for a while, to stop violence and to live in peace like brothers. Let us not rush madly to destroy our race and our civilization. Let's read the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. In the first two lines of the poem, the poet is appealing to his readers to keep quiet and to be still for a count of 12. The 12 number is significant of the time and the months of the year. He reminds us that time passes by without anyone realizing, and we do not take out the time to reflect on our own thoughts and actions. यहाँ पे आपको पोइट कह रहा है कि भी पोइट आप काउंटिंग 12 तक गिनेगा और आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। यहाँ पे 12 नंबर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये टाइम को शो करता है एज वेल एज मंथ्स ऑफ द ईयर। वो आपको बताता है टाइम बीतता चला जाता है, लेकिन हम अब कभी भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, कभी भी अपने अंदर नहीं देखते, कभी अपने एक्शंस के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में कभी भी नहीं सोचते। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms forwards. Here, the poet continues to tell us not to speak any language. It refers to everyone, that everyone remain keeping quiet together at the same time. All men would be using the same language, that is silence. He also says not move our arms so much. It means we have to stop all wars and destructions. Man must put down his weapons and not use his arms to seize all actions. Means he used the words like once and 1 second because he is requesting to the readers to do something that they had never done before. Means to say, नरेटर आपको ये कहना चाह रहा है, इस अर्थ के फेस पर पहली बार एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करें जब हम सभी एक साथ बैठें, कोई भी लैंग्वेज यूज़ ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए सभी बिल्कुल स्टिल हो जाएं। नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच, अपनी आर्म्स को भी ना हिलाएं। मीन्स वी मस्ट नॉट इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन एनी एक्शन, वी जस्ट टू डू इंट्रोस्पेक्शन, डीप इंट्रोस्पेक्शन। वो आपको कह रहा है कि भी आप कोई भी लैंग्वेज ना बोलें, 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, ना ही कहीं पर अपना कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden stillness. In these lines, Neruda calls the moments of silence
that could be very exotic, means that could be very excited, extraordinary moment will be there. In this moment there will be complete stillness, there would be no rushing around and no competition with each other, no machine or engine would be turned on. We all would be united with the rest of the world. We must feel integrated. We must bounded ourselves with a link of peace and quietness. Means नरेटर ये कह रहा है ह्यूमन बींग्स हमेशा सेल्फिश माइंड बनकर, सिंगल माइंडेड बनकर अपने बारे में सोचता रहता है. हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, इसीलिए अपनी लाइफ को एक इंजन की तरह हर टाइम कंटिन्यू रखने की बजाय एक साथ मिलकर एक अजीब सी स्टेज एटमॉस्फेयर के अंदर, बिकॉज इफ़ देयर विल बी द साइलेंस, अगर चारों तरफ साइलेंस होगी और ऑटोमेटिकली देयर विल बी पीस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होगी. हम सब इकट्ठे बैठकर अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हरीड एंड फास्ट ना रखकर शांति से बैठेंगे, अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शंस करेंगे और वो मोमेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होगा, क्योंकि हमने पहले कभी रियलाइज़ ही नहीं किया, इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं किया, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने ब्रदर्स के बारे में नहीं सोचा. सो इट इज़ टाइम टू डू द फीलिंग्स ऑफ टुगेदरनेस दैट मस्ट बी एडजस्टेड in all human beings. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Here the poet further tells about the fisherman who always hunts whales, because fishermen by having the business of whales, they used to do earning for their livelihood. जो फिशरमैन हैं वो ठंडे पानी की भी परवाह न करते हुए उसी कोल्ड सी के अंदर वेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसीलिए अब उन्हें स्टॉप करना होगा इन अपनी एक्टिविटीज़ को. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी वहीं सी पर साल्ट को गैदर करने का काम करते हैं, इन वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो कभी भी ये नहीं देखते कि भी जो गैदरिंग साल्ट करते हैं उस टाइम पर उनके हाथों को भी नुकसान पहुंचता है. तो वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी आजीविका को कमाने के लिए कभी अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देता है. तो इट विल बी द टाइम टू डू इंट्रोस्पेक्शन, टू थिंक अबाउट द एक्शंस व्हाट वी आर डूइंग. ही आल्सो emphasizes that how a man is exploiting nature for his own purpose. He never think about the destructions he is also causing to the environment. So now we have to think about our actions. Those who prepare green wars, जो लोग ग्रीन वॉर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire. Here the poets wants to say that most of the people, means most of the world, they are preparing for green wars, means they are destroying the environment, they are causing to the devastation of the environment. Wars with gas. Now the poet wants that we must stop to use or to produce gases, bullets and bombs. He states that wars with fire means wars with fires means weapons का यूज़ जब हम करते हैं, पॉइजनस गैस का यूज़ करते हैं, तो that is causing to the डिस्ट्रक्शंस ऑफ द नेचर एज वेल एज़ फॉर द वर्ल्ड. नेचर के साथ साथ हम पूरे संसार के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. दैट्स वाई इट मस्ट बी स्टॉप्ड. ये बिल्कुल स्टॉप्ड होना चाहिए, बिकॉज इट कुड बी द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स. बहुत सारे इनोसेंट लाइव्स को नुकसान पहुंचा सकता है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. अगर किसी की विक्ट्री भी होती है तो उस विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, बिकॉज वी आर किलिंग ईच अदर. हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे, एक दूसरे को मारने
का एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी सेल्फिश नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। नाउ would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने की ज़रूरत है। इट मीन्स द पोइट वांट्स मीन्स टू क्लीन आवर सेल्स। हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली क्लीन करना होगा। मीन्स अपने माइंड से जो हेटेड की फीलिंग्स हैं, एक दूसरे को से आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो इट इज़ द टाइम टू वॉक विद आवर ब्रदर्स। और यही टाइम है कि भी हम अपने दूसरे ब्रदर्स के साथ सभी लोग एक साथ मिलकर इंट्रोस्पेक्शन करें। हम एक साथ टुगेदरनेस की भावना से बैठें, डूइंग नथिंग, कुछ कर ना करें। मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद कर दें, बट इंट्रोस्पेक्शन से ध्यान दें हम जो कुछ कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। इट मीन्स द पोइट्स वांट्स दैट वी मस्ट क्लीन आवर सेल्स फिजिकली एज वेल एज मेंटली, बिकॉज दिस टाइम एवरीवन इज ट्राइंग टू किल each other and they are damaging the arts, the human beings. All these things are suffering just because of the human beings selfish needs. What I want should not be confused with total inactivity. Here the poet does not want that his readers would be confused keeping quiet. He doesn't advocate total inactivity. He simply advises deep introspection and asks us not to involve in any activity that are aimless, that might lead to the destruction of the ecosystem. पोइट अपने रीडर से चाहता है वो टोटल इनएक्टिव वर्ड को लेकर कंफ्यूज ना हो। उसका मतलब ये नहीं है कि भी डेथ की तरफ चले जाएं, बट अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दें, क्योंकि सभी सिंगल माइंडेड बन गए हैं, सभी अपनी आजीविका को पूरा करने में, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो अब उन एक्टिविटीज़ को बंद करें, जस्ट टू डू डीप इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्म संश्लेषण करें, अपने बारे में सोचें। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रैक with death. Here the poets focused on advancements and his own progress, because as the time moves forward that he is forgetting about the consequences of his actions. Life is what is about. लाइफ तो वही है जैसा हम चाहते हैं लाइफ के बारे में बनाना, वैसे ही है। बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ से ह्यूमन बींग्स के लिए डिस्ट्रक्शंस के वे पर जा रही हैं। वॉर्स, वायलेंस, डेथ, डिस्ट्रक्शंस चारों तरफ फैला हुआ है। पोइट आपको कह रहा है कि भी सभी एक्टिविटीज़ को बंद कर दो एक मोमेंट के लिए, और जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है, जो बिल्कुल रेस्टिंग पॉइंट है, एक मोमेंट के लिए स्टिल हो जाना, उसको एंजॉय करिए। वो पोइट आपको बस वो हैप्पीनेस, वो इनर स्ट्रेंथ देना चाहता है जो एवरी ह्यूमन बीइंग डिज़र्व करता है। बिकॉज दीज फ्यू मोमेंट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्स। इट कुड सीज आवर वेज, इट कुड स्टॉप आवर वेज दैट लीड्स टू सेल्फिश एंड डिस्ट्रक्शंस। What I want not to be confused with total activity. Life is what is about. I want no track with death. पोइट कह रहा है कि भी मैं नहीं चाह रहा आप डेथ के ट्रैक पे चले जा, मीन्स यू गेट डेथ, बट हेयर देर इज़ नीड टू डू इंट्रोस्पेक्शन, या इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। टू बी स्टिल, एक मोमेंट के लिए स्टिल रहने की ज़रूरत है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड ना हो, अपने बारे में ही ना सोचें, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हमेशा एफर्ट्स रहता है कि हमारी लाइफ जो है प्रोग्रेस करती रहे।
We always think about our own progress as the time moves forward, because man is forgetting about the consequences of his actions. हम भूल जाते हैं हमारे एक्शंस के क्या रिजल्ट हो सकते हैं. And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. हम एक मोमेंट के लिए कुछ भी ना करें, शायद जो एक ह्यूज साइलेंस वाला एटमोसफियर है वो हमारी सैडनेस को दूर कर देगा. विच सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेथ. जो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ह्यूमन बींग्स के बीच में एक दूसरे को समझने की, और हमेशा हमें डेथ का डर बना रहता है, तो वो डर दूर हो जाएगा अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. अगर हम एक साथ अपने सभी ब्रदर्स के साथ एक साथ मिलके बैठे, स्टिल हो जाएं, शांत हो जाएं, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म संश्लेषण करें, अपनी इनर वॉइस को सुने, सोचें हमारे एक्शंस की वजह से हमारे जो हम लगातार प्रोग्रेस के वे पे चलते जा रहे हैं उससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, इन्वायरमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है. अगर इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो शायद ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं वो दूर हो जाएंगी. वो द पाल ऑफ द सैडनेस कुड बी रिमूव्ड बाय हैविंग डीप इंट्रोस्पेक्शंस बाय ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज there is the requirement in order to understand each other, to maintain the balance that must be existed between man and nature. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद ये अर्थ हमें एक अच्छा लेसन दे सकती है, क्योंकि जब सारी चीज़ें अर्थ पर डेड नज़र आती हैं कि भी अब जीवन संभव नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद वही चीज़ें दोबारा अलाइव हो जाती, दोबारा जीवन के रूप में आ जाती हैं. मीन्स द अर्थ टीचेज ए वैल्यूएबल लेसन थ्रू द स्टिलनेस ऑफ द विंटर सीजन. जब विंटर सीजन आता है तब सारी चीज़ें स्टिल हो जाती है. पेड़ों का ग्रोथ होना आउटसाइड द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सोइल की जो ऊपर वाली परत है उस पर कम हो जाता है. बट अंडर द रूट्स ऑफ ए न्यू प्लांट आर स्प्रेडिंग. लेकिन कहीं ना कहीं सोइल के नीचे जो एक नए प्लांट्स की जो रूट्स स्प्रेड आउट होती जा रही है उसमें एक नया जीवन आता जा रहा है. द अर्थ नर्चर्स एंड प्रोटेक्ट्स दिस न्यू लाइफ वेटिंग फॉर द राइट टाइम. राइट टाइम के लिए अर्थ हमेशा वेट करती है. व्हेन स्प्रिंग सीजन कम्स ऑल द न्यू प्लांट्स स्टार्ट्स टू ब्लूजम एंड ब्लूम. तब सारे प्लांट्स दोबारा से फ्लोरिश करना स्टार्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे अर्थ हमें एक अच्छा लेसन सिखाती है. जब सारी चीज़ें डेड हो जाए, मीन्स कुछ टाइम हमें भी चाहिए, नॉट इन ए डेथ पोजिशन बट इन ए स्टिल पीसफुल एटमोसफियर में हमें रहना होगा. दैट कुड बी वेरी एक्जोटिक मोमेंट, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होगा. वी कैन थिंक अबाउट आवर एक्शंस, वी कैन थिंक अबाउट आवर डूइंग्स, बिकॉज आवर actions are harmful and they also distractions also causing by us by having the way to be progress, because we are focusing on progressing and we forget that we are harming others in our journey. So earth teaches us lesson. Earth always teaches to गिव, हमेशा देना सिखाती है, बट इट नेवर एक्सपेक्ट्स टू गेट एनीथिंग. कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती. इट ऑलवेज गिव्स द लाइफ टू ऑल, हमेशा दूसरों को एक नया जीवन देती रहती है. नाउ आई विल काउंट अप टू 12. अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, आप सभी शांत रहेंगे एंड आई विल गो. और जो पोइट है वो कह रहा है कि अब मैं चला जाऊंगा. मीन्स हियर द पोइट इज़ रेडी टू लिव as he has now convinced his readers to the necessity of introspection and to think about what they are doing. He just tells us to count to 12 and he would go. This is the poem. I hope you will understand the poem. There are some poetic devices also used in the poem. Green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor. There is irony. यहाँ पे irony यूज़ किया गया है.
बिकॉज अगर हम इसके मीनिंग को देखें, देर इज़ नो विक्ट्री इन दीज वार्स एज काउंटलेस मैन हैव डाइड ड्यूरिंग दैम। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कोई विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए बचता ही नहीं। तो इसीलिए इन वर्ड्स में ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, देर इज़ आयरनी यूज्ड। मेटाफर यूज़ किया गया है। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स मीन्स देर इज़ ए नीड टू क्लीन आवर सेल्स टू eradicate all feelings of hatred, anger and destruction. So here is metaphor. I hope you will understand the poem. Thank you.